So today we'll be looking for stereochemistry, which is one of the important part for pharmaceutical or organic chemistry for your GPAT. Okay. So stereochemistry is one of the part which most of the questions like common questions are repeatedly asked again and again. Okay. So most of the times this is uh, considered as an important point of chemistry. So we'll begin with the stereochemistry. So what is stereochemistry? In simple terms, if we say, then stereochemistry is the study of spatial arrangement of the molecules in the structure. Okay, means how these molecules are arranged three-dimensionally into the structure. That the study of that is, we can say, as the stereochemistry. Now in stereochemistry, the most used word, that is the isomers. What is isomer? Isomers are different compounds with the same molecular formula. मतलब क्या क्या आइसोमर अलग अलग स्ट्रक्चर्स में हो सकते हैं, बट उनका मोलिकुलर फॉर्मूला एक होता है. ओके. एंड उसमें दो मेजर क्लास ऑफ आइसोमर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड स्टेरियो आइसोमर्स. The first is constitutional or structural isomers, we call it as. The next is stereoisomers, that which we'll be seeing into the stereochemistry. So constitutional or structural isomer मतलब क्या? Which have different IUPAC names, the same or different functional groups, different physical properties and different chemical properties, but they have same molecular formula. These are constitutional or structural isomers. The next is stereoisomers, which differ only in the way the atoms are oriented in the space. Okay. स्टेरियोआइसोमर में हम सिर्फ ओरिएंटेशन देखते हैं, एटम थ्री डायमेंशनल में कैसे किस जगह पे है, क्या चेंज है उन दो कंपाउंड्स में. ओके. अगर उनमें सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट का चेंज है तो हम उसको एक दूसरे के स्टेरियोआइसोमर बोल सकते हैं, दो कंपाउंड को. They have identical IUPAC names except for a prefix like cis or trans. उनका IUPAC nomenclature भी सेम होता है, एक्सेप्ट उनमें कुछ प्रीफिक्स होते हैं cis या trans. ओके. They always have the same functional group. Stereoisomers always have same functional group. Constitutional or structural isomers may or may not have same functional group. Okay. A particular three-dimensional arrangement is called a configuration. So what is configuration? Arrangement, okay, spatial arrangement into a three dimension, we call that as configuration. Stereoisomers differ in the configuration. Okay. मतलब क्या, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसका अगर हम 3D स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं. लाइक उसका क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है. ओके. थ्री डायमेंशनली. ओके. और ये जो अरेंजमेंट है, इसको एक वर्ड है, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन. और अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं और दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर नेम, आईयूपैक नेम, फंक्शनल ग्रुप सब सेम है, बट उसमें क्या है ना, जो कंपाउंड का अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशनली वो थोड़ा चेंज है, ऊपर नीचे है. ठीक है. उनका कॉन्फ़िगरेशन ऊपर नीचे है, चेंज है, तो हम उन दो कंपाउंड को एक दूसरे का स्टेरियो आइसोमर बोलेंगे. ओके. क्लियर? Yes. The next is a comparison of constitutional isomers and stereoisomers. Means what, मतलब मैंने यहाँ पे एग्जांपल से दिया है कि स्टेरियोआइसोमर क्या होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या होते हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. ओके. उसका एग्जांपल जो यहाँ पे है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, यू कैन सी कि यहाँ पे कंपाउंड है 2 मिथिल पेंटेन एंड 3 मिथिल पेंटेन. मतलब क्या है, इसमें सिर्फ सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे मिथिल इतना चेंज है इसमें. ओके. बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H14, इसका भी C6H14. ओके. इसका आयुपेक नेम अलग है क्योंकि इसमें मिथिल पोजीशन जो है वो अलग अलग जगह पे, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे. ओके. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नेम्स. ओके. डिफरेंट आयुपेक नेम्स. ओके. दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. अब हम देखेंगे स्टेरियो आइसोमर्स. स्टेरियो आइसोमर्स में हमने क्या बोला कि स्पेशल अरेंजमेंट सिर्फ देखेंगे, बाकी सब कुछ सेम है. अब देखो इन दो कंपाउंड में क्या है, ए और बी में, कि सिस 1,2 डायमिथिल साइक्लोपेंटेन है ये, और ये ट्रांस 1,2 डायमिथिल साइक्लोपेंटेन. तो इनका जो भी नेम है वो सेम है. ओके. सिर्फ यहाँ पे सिस है, यहाँ पे ट्रांस है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये वेज शेप है. ओके.
ये भी वेज शेप है, यहाँ पे ये वेज शेप है और ये डॉटेड शेप है। ये शेप क्या डिपिक्ट करते हैं कि ये जो CH3 ग्रुप है ये प्लेन के ऊपर है कि प्लेन के नीचे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेपर है, प्लेन है, ओके, तो कंपाउंड नंबर ए में दोनों CH3 क्या है, ये प्लेन के ऊपर है, ओके। तो इसलिए क्या हो गया, ये दोनों कंपाउंड एक ही साइड है, इसलिए हमने इसको सिस नाम दिया। द नेक्स्ट इज ट्रांस। ट्रांस में क्या है, यह कंपाउंड अगर हम 3 डायमेंशनली देख रहे हैं, ठीक है, तो या 2D जैसे कि यहाँ पे वेज और डॉटेड से दिखाया है, तो एक CH3 ऊपर है और एक CH3 प्लेन के नीचे है, ठीक है। ये जो डॉटेड है मतलब अवे फ्रॉम अस, ओके, प्लेन के नीचे, और जो वेज है वो हमारे नजदीक है, ओके। ये वाला डॉटेड यहाँ पे, ओके, तो ये प्लेन के नीचे है। इसलिए क्या है, इसमें सिर्फ क्या है कि अरेंजमेंट डिफरेंट है, सब मॉलिक्यूल सेम है, सब सेम है, सिर्फ 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होती है, स्पेशल अरेंजमेंट, वो डिफरेंट है, हम उनको बोलते हैं स्टेरियो आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम नेम एक्सेप्ट द प्रीफिक्स, नेम भी सेम है, सिर्फ प्रीफिक्स अलग है, सिस और ट्रांस, बाकी सब सेम है, ओके, उसको हम स्टेरियो आइसोमर्स बोलते हैं। तो ये एकदम सिंपल मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं सो दैट इट कैन बी क्लियर फॉर यू कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या और स्टेरियो आइसोमर क्या। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स, ओके। So when we talk about classification of isomers, the first that is what is isomer, I have already told you। तो isomer मतलब क्या, कि दो कंपाउंड है, वो हम उनको बोलते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमर है। तो उसमें क्या हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेरियो आइसोमर हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनमें क्या चेंज है, ओके। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में हमने देखा कि उनका आयुपेक नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप, अरेंजमेंट ये डिफरेंट होती है, ओके। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। नेक्स्ट इज स्टेरियो आइसोमर। इसमें क्या है कि स्पेशल अरेंजमेंट जो है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जब हम देखेंगे, ओके, उस कंपाउंड की, तो उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स वो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, मतलब जो आपके 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, इस एक्सिस में उस कंपाउंड के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, ठीक है, उतना अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो आ जाता है आपका स्टेरियो आइसोमर्स में। नाउ दिस स्टेरियो आइसोमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू enantiomers and diastereomers. Enantiomers are mirror images and diastereomers are non-mirror images, okay, and these diastereomers are further divided into configurational diastereomers and cis trans diastereomers। तो हम ये सब जो भी है डिटेल में स्टडी करेंगे स्टेरियो आइसोमरिज्म, ओके, के अंडर। नाउ अब हम देखेंगे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या होते हैं डिटेल में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर आइसोमर्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द वे देयर एटम्स आर कनेक्टेड। मतलब क्या, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट इनके एटम्स डिफरेंट वे में कनेक्टेड होते हैं, या उनकी चेन अलग होती है, ब्रांचेस अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, ओके, ये हो गया कंपाउंड ए, ये हो गया कंपाउंड बी, ठीक है। तो कंपाउंड ए में क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला है C4H10, इसका भी केमिकल फॉर्मूला C4H10 है, बट ये है ब्यूटेन और ये है 2 मिथिल प्रोपेन। तो क्या हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ब्रांचेस अलग हैं, ओके। ये 2 मिथिल प्रोपेन का भी केमिकल फॉर्मूला C4H10 है, ब्यूटेन का भी C4H10 ही है। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। यहाँ पे नीचे और एग्जांपल दिए हैं मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के, इथेनॉल एंड डायमिथिल इथर, ओके। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी अलग है, इथेनॉल में कौन सा ग्रुप आता है, अल्कोहल, ओके, और डायमिथिल इथर, इथर वो उसका फंक्शनल ग्रुप है, वो इथर है, ठीक है, CH3OCH3, और इथेनॉल का CH3CH2OH। बट अगर हम इनका केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो सेम ही होगा। जैसे कि अब देखो इसका बताओ मुझे, ये कार्बन कितने इसमें, 1 2, C2, ओके, H कितने हैं, 3 और 2 5 6, H6O, C2H6O। अब इसका देखो कार्बन कितने हैं, C2H6 एंड O। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, बट
क्या है, इनका फंक्शनल ग्रुप अलग है, इनका आयुपेक नोमेनक्लेचर अलग है, ठीक है। ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। सिमिलरली ये एक एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या है कि क्लोरीन की पोजीशन सिर्फ 1 से सेकेंड पोजीशन पे शिफ्ट हो गई है, ओके। तो ये हो गया आपका 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन, ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। नेक्स्ट इज पेंटेन एंड आइसोपेंटेन, ओके। पेंटेन एंड आइसोपेंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बाकी स्ट्रक्चरल आप देख सकते हो इनका स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पे ब्रांच्ड है आइसोपोजिशन, ओके। नेक्स्ट इज एसीटोन एंड प्रोपियन अल्डिहाइड, ओके। तो इनमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप चेंज है। एसीटोन में आपका आता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप और प्रोपियन अल्डिहाइड में आता है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, आयुपेक नोमेनक्लेचर डिफरेंट है, ठीक है। सो दीज टू कंपाउंड्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कौन से आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कम्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और अलोंग विद द टाइप्स ऑफ आइसोमर, मतलब कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और स्टेरियो आइसोमर, ऐसे 3 टाइप होते हैं आइसोमर के। यहाँ ऐसे भी कंसिडर किया जाता है कि आपका जो ये है आइसोमर्स, उसमें स्टेरियो आइसोमर कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल के अंडर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। वो हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि वो कहाँ आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो द पाई बॉन्ड is in an alkene does not permit rotation, thus all of the atoms attached directly to the alkene lie in a plane। क्या बोला इन्होंने, तो जो पाई बॉन्ड है एक अल्कीन में, अल्कीन मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है इस अल्कीन का, ये क्या करता है, इस कंपाउंड को इतना रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ये कंपाउंड रोटेट नहीं हो पाता, ठीक है। ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड दिस कंपाउंड कैन नॉट बी रोटेटेड, ओके। does not permit rotation, thus all of the atoms attached directly to the alkene lie in a plane। इसलिए अल्कीन को जो भी कंपाउंड्स या जो भी चीज अटैच्ड है वो एक प्लेन में रहती है, lie in a plane because there is no rotation due to this pi bond। Groups attached to the alkene could be positioned on the same side of the alkene or on opposite side of the alkene। Such compounds are different in chemical and physical properties as well as in their geometry and are called geometrical isomers। क्या बोला इन्होंने कि अब ये जो ग्रुप और कंपाउंड्स हैं जो इस अल्कीन के डबल बॉन्ड को अटैच्ड है, वो सेम साइड या अपोजिट साइड में अब अरेंज कर सकते हैं। सच कंपाउंड्स आर डिफरेंट इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज इन देयर ज्योमेट्री एंड आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब क्या, इनकी ज्योमेट्री अलग है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, ओके, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, तो उनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 2 ब्यूटीन का, द मिथिल ग्रुप कैन बी लोकेटेड ऑन द सेम साइड और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड गिविंग राइज टू 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, लेट मी क्लियर एवरीथिंग फर्स्ट, ओके। तो ये है 2 ब्यूटीन, इसमें ये मिथिल ग्रुप जो है ये डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, नीचे वाले साइड में, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपको दिख रहा है, तो ये दोनों क्या है, ये नीचे वाले साइड में है, ओके। और यहाँ पे क्या है, ये मिथिल ग्रुप एक नीचे है, एक ऊपर वाले साइड पे है, ओके। तो जब दोनों हेवी ग्रुप, मेजर ग्रुप एक साइड में होते हैं हम उसको सिस बोलते हैं, और अपोजिट साइड में होते हैं उनको हम ट्रांस बोलते हैं। तो यहाँ पे सिस 2 ब्यूटीन और ये हो गया ट्रांस 2 ब्यूटीन, ओके। 2 ब्यूटीन का हमने एग्जांपल लिया था। जस्ट अ मिनट, okay, the isomer with the groups on the same side is called cis isomer, while the isomer located on opposite side is called the trans isomer। अगर सेम साइड पे हैं तो हम उसको सिस बोलते हैं, ऑपोजिट साइड पे है तो हम उसको
ट्रांस आइसोमर बोलते हैं. ओके. Trans isomer of compound are usually more stable than cis isomer. This is very important. Always it is considered as trans isomer is more stable than cis isomer. Next we'll see geometric cis and trans isomers. Okay. ये ज्योमेट्रिक सिस एंड ट्रांस आइसोमर कहाँ से मतलब क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रोटेशन. ओके, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द रोटेशन, सो we can see this geometric cis and trans isomers. Also we'll be seeing EZ isomers. Okay, geometric cis trans and geometric EZ isomer. अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है. cis isomer have same substituents on the same side of the double bond Z Zuzamen together with more complex molecules having high priority groups on the same side. क्या बोला इधर कि सिस या हम उसको जेड जुजामेन भी बोल सकते हैं टुगेदर. उसमें क्या होता है कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप ओके वो सेम साइड पे होते हैं डबल बॉन्ड के, तो हम उसको सिस आइसोमर बोलते हैं या जुसामेन बोलते हैं, उसको जेड से डिनोट करते हैं. द नेक्स्ट इज ट्रांस आइसोमर have the same substituents on the opposite side of the double bond, and it is also we can show it as E-etenginen opposite with more complex molecule having high priority groups on opposite side. तो क्या है कि यहाँ पे हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे हैं और दूसरे इसमें हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे हैं. ओके, compounds with bonds in a ring. Cis isomer have the same constituents on the same side of the ring. Trans isomer have the same substituents on the opposite side of the ring. अब मैंने इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको, सो इट वुड बी क्लियर फॉर यू कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट सिस ट्रांस एंड ई एंड जेड. ओके, सो विथ एन एग्जांपल विल सी. ऐसे थेरोटिकली थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको. ठीक है, तो सिस ट्रांस and EZ. See, this is compound number A. Will consider this will consider as B. ठीक है, first consider the above A and B. नीचे वाला मत देखो अभी फिलहाल, अभी A और B देखो ऊपर वाले. ठीक है, तो इन कंपाउंड A you can see क्लोरीन जो है वो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है और वो दोनों सेम साइड हैं डबल बॉन्ड के ऊपर वाली साइड पे, तो इसको हमने सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन नाम दे दिया. इस कंपाउंड में क्या है, क्लोरीन एक नीचे है एक ऊपर है, मतलब ऑपोजिट साइड है, तो इसको हमने नाम दे दिया ट्रांस 1,2 ट्राइक्लोरोइथेन. द अनदर थिंग इज जेड. जेड हम कब बोलते हैं, जब दोनों सेम साइड पे हों तब. ओके, तो यहाँ पे भी क्या है कि दोनों सेम साइड पे, तो हम इसको नाम Z12 ट्राइक्लोरोइथेन दे सकते हैं. यहाँ पे दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं. ओके, तो हम इसको E12 ट्राइक्लोरोइथेन नेम देंगे. यहाँ पे सेम साइड, यहाँ पे ऑपोजिट साइड. ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ सिस ट्रांस जेड एंड ई. अब नीचे आओ, अब यहाँ वाला ए देखो, ये वाला कंपाउंड ए, ये वाला कंपाउंड बी. अब यहाँ पे देखो क्या है ना कि यहाँ पे सेम कंपाउंड नहीं है दोनों साइड पे. ओके, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे सी एल है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है. ओके, तो इन केस में सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होती. ओके, इवन इन द कंपाउंड नंबर बी. बी वाले में देखो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन है. दोनों साइड पे सेम है क्या ग्रुप्स? नहीं. ऊपर वाले में क्या था, दोनों साइड पे क्लोरीन था. ओके, तो यहाँ पे सिस ट्रांस आता है. जब दोनों साइड पे सेम कंपाउंड्स नहीं आते तब सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होता, तब जेड एंड ई आइसोमर होते हैं. ओके, यहाँ पे सिस जेड दोनों बोल सकते हैं, ट्रांस ई बोल सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ जेड और ई आएगा. यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सेम कंपाउंड्स नहीं है दोनों साइड में. ओके, सेम मॉलिक्यूल्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अब ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको है, ब्रोमीन और क्लोरीन को. मतलब ये ऐसे हो जाता है, हाइड्रोजन देन एफ देन Cl देन Br एंड देन आयोडीन. ओके, ये आपका ऐसे प्रायोरिटी बढ़ती जाती है. तो हाइड्रोजन इज द लीस्ट प्रायर, उसके बाद फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन. तो अब इन चारों में से ब्रोमीन और क्लोरीन जो हैं वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं, और वो दोनों क्या है कि सेम साइड पे हैं डबल बॉन्ड के. इस डबल बॉन्ड के सेम साइड पे हैं दोनों हाई प्रायोरिटी वाले, और ये दोनों लो प्रायोरिटी वाले हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन. ओके,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों सेम साइड पे हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स विथ हायर प्रायोरिटी आर ऑन द सेम साइड, तो ये हो गया जेड आइसोमर। ओके, अब सेकेंड आपका एग्जाम्पल नंबर बी, इसमें क्या है, ब्रोमीन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है। ओके, तो ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे नंबर दिया है इनको, हाई प्रायोरिटी वालों को 1 नंबर दिया है, लो प्रायोरिटी वालों को नंबर 2 दिया है। यहाँ पे भी हाई प्रायोरिटी को नंबर 1, लो प्रायोरिटी वालों को नंबर 2। ठीक है, तो ब्रोमीन और क्लोरीन अपोजिट साइड पे हैं। ये दोनों सेम है क्या, अगर ब्रोमीन और ब्रोमीन होता, अगर यहाँ पे भी ब्रोमीन होता तो मैं यहाँ पे ट्रांस बोल पाता, पर यहाँ पे क्या है, एक ब्रोमीन है एक क्लोरीन है। ओके, तो इसलिए हो गया ई आइसोमर। ऑपोजिट साइड पे हाई प्रायोरिटी ग्रुप है तो ये हो गया ई आइसोमर, सेम साइड पे हाई प्रायोरिटी ग्रुप है तो जेड आइसोमर, सेम साइड पे सेम ग्रुप है तो सिस, ऑपोजिट साइड पे सेम ग्रुप है तो ट्रांस। आई होप दिस इज क्लियर, सिस ट्रांस ई जेड, इसका आपको फर्क भी समझ गया होगा इसी एग्जांपल में। सर प्रायोरिटी ऑर्डर बताइए ना सर एक बार। अरे प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब प्रायोरिटी नहीं है, ये देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, फिर आपका जो पीरियोडिक टेबल है ना उसमें हेलोजन्स कैसे होते हैं, फ्लोरीन, क्रोमीन, FCl Br, ठीक है। फ्लोरीन का क्या है, लो एटॉमिक नंबर है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, समझा, बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक यस। नंबर। ओके, प्रायोरिटी मतलब एटॉमिक नंबर, हेवी ग्रुप। ओके, ये हेवी ग्रुप हो गए, ये लाइट ग्रुप हो गए, ऐसा है। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। अब ये देखो, इफ वन ऑफ द टू कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड हैज टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स देयर आर नो सिस ट्रांस आइसोमर फॉर दैट मॉलिक्यूल। मतलब क्या, देखो इसमें कि वन पेंटीन का एग्जांपल है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके, और यहाँ पे CH2 CH2 CH3 है। इफ वन ऑफ द टू कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड हैव टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब क्या, इनमें से किसी भी एक कार्बन पे दोनों सेम है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर नहीं होता। यहाँ पे भी देखो CH2 CH3 CH2 CH3 एक ही साइड पे दोनों सेम है, ओके, तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता। ओके, और ये है 1,1 डाइक्लोरो इथेन, इसमें क्लोरीन ये दोनों इस साइड से हैं, हाइड्रोजन इस साइड से, इन कंपाउंड्स में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जीपैड में ऐसे भी एग्जांपल दिए जाते हैं एंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि इन कंपाउंड्स का क्या, इसमें सिस ट्रांस होगा कि नहीं होगा। तो इन कंपाउंड्स में सिस ट्रांस नहीं होता जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड पे होता है, मतलब इस साइड पे ऐसे, समझा, ऐसे वाले कंपाउंड्स में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होता। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें बताने, तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दिया है, ये ट्रांस 3,4 ट्राइक्लोरो 3 पेंटेन है और सिस 3,4 डायमिथिल 3 ऑक्टीन है। तो ये ट्रांस कैसे और ये सिस कैसे वो हम देखेंगे। तो मैं ना क्या करता हूँ, इसके ग्रुप्स को ना अलग से हाईलाइट करता हूँ। अभी देखो ये डबल बॉन्ड है, पहले तो हम डबल बॉन्ड को हाईलाइट करेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ पे, अब डबल बॉन्ड अगर ऐसा है, डबल बॉन्ड इसको इसको ऐसे डिवाइड किया ऊपर नीचे वाले प्लेन में, तो इसके ऊपर क्या है, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, ठीक है, ऊपर वाले इसमें यहाँ पे क्लोरीन है, ओके, और ऊपर वाले के इसमें CH2 CH3 है, इसके नीचे वाले के इसमें क्या है, CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो जो हैं ग्रुप्स, कौन से वाले, ये वाला ग्रुप हाई प्रायोरिटी का है, ये वाला हाई प्रायोरिटी का है। कैसे, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट टोटल इसका CH2 CH3 का और CH2 CH2 CH3 का ओनली Cl से ज्यादा है, तो ये दोनों अपोजिट साइड पे आ रहे हैं और ये दोनों हेवी ग्रुप्स हैं और ये दोनों अपोजिट साइड पे आ रहे हैं। यहाँ अगर हम क्लोरीन भी देखें, अगर क्लोरीन का हाई आ रहा है, ठीक है, इनसे, तो क्लोरीन अपोजिट साइड पे है, तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ओके,
ट्रांस 3,4 डाइक्लोरो 3 हेप्टेन। अब सेम हम सेकेंड कंपाउंड में करेंगे। पहले हम डबल बॉन्ड को हाईलाइट करेंगे। डबल बॉन्ड को हाईलाइट करने के बाद इसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि हमें ऊपर और नीचे का इजीली सेपरेट कर पाए। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। अगर हम ऊपर वाले कंपाउंड देख रहे हैं तो यहाँ पे है CH2CH3 एंड CH2CH2CH2CH3। और नीचे क्या है, नीचे है यहाँ पे CH3 एंड CH3। तो ये दोनों जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं, ये दोनों कहाँ पर हैं, ऊपर वाले साइड पर हैं। ऊपर वाले साइड पे होने की वजह से सेम साइड, और इसलिए ये है सिस। क्लियर? यस सर। Determine whether each of the following molecules can exist as cis trans isomers. ओके, तो हमें क्या करना है कि इनमें से कौन से, मतलब ये सिस में होंगे या ट्रांस में होंगे। कंपाउंड दिया है 1,3-methyl-2-pentin। ओके, और मैंने यहाँ पे आंसर भी दिया है इनका। ये वाला सिस है, ये वाला ट्रांस है। तो 3-methyl-2-pentin है। ओके, 3-methyl-2-pentin 1 2 3 4 5 ऐसे चेन कंसिडर की है। ओके, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और थर्ड पोजीशन पे मिथिल है। ओके, एंड सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये तो आपका नोमेनक्लेचर हो गया। अब हम इसमें क्या है ना, सिस और ट्रांस बताएंगे। ये देखो, इसमें क्या है, CH3 और CH3 दोनों क्या है, सेम साइड पे हैं, तो ये हो गया सिस। यहाँ पे ट्रांस में क्या है, CH3 ऊपर है, ये CH3 नीचे है, ये हो गया ट्रांस। नाउ सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इन साइक्लोअल्केन, मतलब क्या कि साइक्लिक कंपाउंड्स में भी यही सेम रूल अप्लाई होता है सिस ट्रांस का। ओके, तो सी हियर यू कैन सी कि सिस 1,2 ट्राइक्लोरोहेक्सेन है और यहाँ पे ट्रांस 1,2 ट्राइक्लोरोहेक्सेन है। यहाँ पे देखो ये क्या होता है ना, ये साइकिल है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। इसमें भी सेम, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड के यहाँ पे ये क्लोरीन दोनों नीचे हैं। ओके, तो इसलिए सिस। इसमें एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे है, इसलिए ट्रांस। बाकी तो सब हाइड्रोजन्स हैं, तो हम सिर्फ ये वाला ही देखेंगे। ये ऑपोजिट साइड है, ये सेम साइड है। तो सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी सिस ट्रांस अप्लाई होता है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोअल्केन्स आर सिस और ट्रांस आइसोमर। सेम यहाँ पे भी क्या है कि सिस और ट्रांस वो हमें बताना है, तो मैंने यहाँ पे नाम दिया ही है। ये देखो, ये ट्रांस है क्योंकि ऑपोजिट साइड पे CH3 है, और ये सिस है, सेम साइड पे CH3 है। ओके, सिमिलरली यही कंपाउंड मैंने एकदम शॉर्ट में यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे, ऑपोजिट हो गया, इसलिए ये ट्रांस। ये और ये कंपाउंड सेम ही है, हाँ, सिर्फ ये मैंने शॉर्ट में ड्रॉ किया है, ऊपर और नीचे वाला। यहाँ पे CH3 दोनों नीचे हैं, तो ये हो गया सिस। Now next we will be studying, that is optical activity. So optical activity is the ability of a chiral molecule to rotate the plane of plane polarized light measured using a polarimeter. मतलब क्या कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ चिरल मॉलिक्यूल। चिरल मॉलिक्यूल क्या है मैं वो भी बताता हूँ। एबिलिटी ऑफ अ चिरल मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड इट इज मेजर्ड यूजिंग अ पोलारीमीटर। तो उस पूरी एक्टिविटी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसमें इस पूरे डेफिनेशन में हमने दो नए टर्म्स देखे, दैट इज चिरल मॉलिक्यूल एंड प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट मतलब द लाइट हैज बीन पास थ्रू अ निकोल प्रिज्म और अदर पोलराइजिंग मीडियम सो दैट ऑल ऑफ द वाइब्रेशंस आर इन द सेम प्लेन। ये हो गई नॉन पोलराइज लाइट, मतलब क्या है कि इसके वाइब्रेशन सब अलग अलग प्लेन में है, और इसी लाइट को अगर हम किसी प्रिज्म से पास करेंगे, ओके, तो हमें क्या मिलता है, प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। ओके, जिसकी सब वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में एक दूसरे से पैरेलल चलती हैं। ओके, ये हो गया आपका प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट अगर हम किसी सॉल्यूशन में से पास करें जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ओके, हमारे पास बीकर में एक सॉल्यूशन है, उसमें से मैंने पास किया,
और उसमें से पास होने के बाद ये प्लेन पोलराइज लाइट थोड़ी सी टिल्ट हो गई, किस साइड, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, ओके, तो उस पूरे प्रोसेस को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। इस सॉल्यूशन को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, और इस सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है उसको चिरल मॉलिक्यूल बोलते हैं विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसका डिटेल भी मैंने डायग्राम दिया है आगे, आई विल शो यू। ओके, देखो, तो ये पोलारीमीटर का भी प्रिंसिपल का डायग्राम है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी। पोलारीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, आपने अपने प्रैक्टिकल्स में बी फार्म में यूज किया होगा। ओके, a simple polarimeter consists of a light source, polarizing lens, sample tube and analyzing lens। एक सिंपल पोलारीमीटर में क्या क्या है, लाइट सोर्स है, पोलराइजिंग लेंस है, सैंपल ट्यूब है एंड एनालाइजिंग लेंस है। ओके, तो यहाँ पे लाइट सोर्स है, पोलराइजर है, सैंपल ट्यूब है, एनालाइजर है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लाइट है ये प्लेन पोलराइज नहीं है, डीपोलराइज लाइट है। ये पोलराइजर से पास होने के बाद ये पोलराइज्ड हो जाती है। फिर इस सैंपल ट्यूब में क्या होता है, हमारा जो चिरल कंपाउंड है वो होता है, उसमें से ये लाइट पास होती है, और फिर ये लाइट राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड टिल्ट होती है, और वो कितने डिग्री से टिल्ट होती है वो हम एनालाइजर से एनालाइज करते हैं, और वो डिग्री जो है, ओके, वो बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट का जो एंगल चेंज हुआ है उससे हमें उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पता चलती है। तो वो डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला भी है। ओके, वो मैंने दिया है, जस्ट अ मिनट। ओके, ये देखो स्पेसिफिक रोटेशन। ओके, वो हम इसमें फाइंड करते हैं। पहले हम लीवो एंड डेक्स्ट्रो देखते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक रोटेशन पे भी आते हैं। तो अब अगर लाइट जो है, प्लेन पोलराइज लाइट, वो किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास की और वो अगर राइट हैंड साइड को टिल्ट हुई तो हम उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड को हुई तो हम उसको लीवो रोटेटरी बोलेंगे। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या राइट साइड से अगर वो मूव हो रहा है तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, और उसको हम प्लस या स्मॉल डी से डिपिक्ट करेंगे, नॉट कैपिटल डी, ठीक है, स्मॉल डी। नेक्स्ट इज लीवो रोटेटरी, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम माइनस साइन या स्मॉल एल से डिपिक्ट करेंगे, ना ही बल्कि कैपिटल एल से। द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द पाथ ऑफ द लाइट। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट का जो एंगल रोटेट होने वाला है, ओके, वो किस पे डिपेंडेंट है, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द पाथ ऑफ द लाइट, मतलब कितने कॉन्सेंट्रेशन का वो सॉल्यूशन है उस पे भी वो डिपेंड होता है कि ये लाइट कितनी टिल्ट होगी। अब यहाँ पे मैंने डी एंड एल दोनों कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो इन डी लैक्टिक एसिड, ओके, द OH group is on the, excuse me, the OH group is on the right hand side, and in L lactic acid the OH group is on the left hand side, and the D lactic acid, what it will do, it will tilt the plane polarized light toward the right hand side or in a clockwise direction, and the L lactic acid will tilt it towards the left hand side or in the anti clockwise direction। अब देखो, हम ये जो पोलारीमीटर यूज करते हैं उससे हम क्या फाइंड करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करते हैं। ओके, स्पेसिफिक रोटेशन मतलब क्या, हमने स्ट्रेट लाइन उसमें से पास की, स्ट्रेट लाइट जो थी प्लेन पोलराइज लाइट उसमें से पास की, बट पास करने के बाद क्या हुआ, वो जो स्ट्रेट लाइट थी वो कुछ एंगल, कुछ डिग्री ऑफ एंगल से चेंज हुई। ओके, वो जो है स्पेसिफिक रोटेशन, ओके, डिग्री ऑफ चेंज ऑफ एंगल, वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। The angle of rotation of plane polarized light by 1 gram per cm cube sample in 1 dm tube, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन की ये डेफिनेशन है। अल्फा इज डिनोटेड फॉर स्पेसिफिक रोटेशन, ओके, फॉर द सोडियम लैम्प एट लैम्बडा 589, ओके, और अल्फा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन एल इंटू डी, वेयर अल्फा इक्वल टू ऑब्जर्व रोटेशन, एल इज द लेंथ एंड डी इज द कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम किसी स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन लेते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है,
वो एक 10 सेंटीमीटर की ट्यूब हो गई या 5 सेंटीमीटर की ट्यूब हो गई, उस लेंथ की ट्यूब में हम उसको रखेंगे और उसमें से लाइट पास करेंगे, तो वो जो लेंथ है वो कंसिडरेबल है, कितने कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन हमने यूज किया है वो कंसिडरेबल है, और उसमें से जो लाइट पास होती है वो कितने डिग्री से चेंज हो रही है ऑब्जर्व रोटेशन, वो हम इस फॉर्मूला में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए हैं। एलानिन का अगर हम अल्फा डी कैलकुलेट किया है तो प्लस 8.5 डिग्री से वो स्पेसिफिक रोटेशन दिखाता है, एंड लैक्टिक एसिड का जो है एल लैक्टिक एसिड का वो -3.8 दिखाता है। ओके, एट दैट स्पेसिफिक कांस्टेंट, बाकी के जो चीजें हैं वो सब कांस्टेंट हो तब। स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, concentration of the solution, thickness of the layer, nature of the solvent and temperature at which the experiment is conducted। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन इन सब चीज़ों पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, थिकनेस ऑफ द लेयर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होता है। ओके, हम स्पेसिफिक रोटेशन क्यों फाइंड करते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन हम उस चीज के लिए फाइंड करते हैं क्योंकि प्यूरिटी, ओके, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए वी यूज द और वी स्टडी द स्पेसिफिक रोटेशन। फॉर एग्जांपल, मुझे एक अननोन लिक्विड किसी ने दिया, इट इज वाइट लाइक वाटर, बट मुझे कंफर्म नहीं है कि वो पानी है कुछ और है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, उसका स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करूंगा। अगर उसका स्पेसिफिक रोटेशन इतना इतना आता है जितना स्टैंडर्ड वाटर का है, तो मैं बोलूंगा ये वाटर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई ऑयली सब्सटेंस मिला या कुछ भी कोई सॉलिड सब्सटेंस मिला, उसको मैं डिजोल्व करूंगा, उसकी स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करूंगा, एंड देन वो क्वालिटेटिवली मुझे बताएगा कि वो वही है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हो गया आइडेंटिफिकेशन। क्वालिटेटिवली मतलब क्या, कि वो प्योर है उतना कि नहीं। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स वी वेयर वी यूज दिस स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। The next is about the chirality. Okay, chirality is not reserved just for objects, molecules can be chiral। मतलब क्या, कि सिर्फ ऑब्जेक्ट्स चिरल नहीं होते, मतलब बेसिक जब हम स्टडी करते हैं चिरैलिटी की तो हम ऑब्जेक्ट्स के लिए बोलते हैं। तो व्हाट इज चिरैलिटी? तो इट इज लाइक एक असिमेट्रिक सेंटर होता है, कार्बन होता है, जिसमें चारों जो भी उसके जो भी वैलेंसीज हैं वो अलग अलग ग्रुप से फिल्ड होती हैं। ओके, तो chiral molecule is generally molecule containing a asymmetric center, and asymmetric chiral center means a tetrahedral atom bonded to 4 different groups indicated with an asterisk। तो अगर वो सेंटर चिरल सेंटर है तो हम उसको एस्ट्रिक साइन से डिपिक्ट करते हैं अचिरल सेंटर को, और जिसमें असिमेट्रिक सेंटर होता है। मतलब क्या, जो मॉलिक्यूल्स जिनमें असिमेट्रिक सेंटर होता है उनको हम चिरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। और असिमेट्रिक सेंटर मतलब क्या, एक टेट्राहेड्रल एटम जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। एंड असिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे दिखाया गया है क्योंकि ये चारों अलग अलग कलर के मॉलिक्यूल से अटैच है। यहाँ डिटेल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो कार्बन है और ये 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे COH है। तो ये चारों जो भी ग्रुप है ये क्या है, ये डिफरेंट है। तो ये हो गया आपका असिमेट्रिक सेंटर। ओके, और इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे चिरल मॉलिक्यूल। ये असिमेट्रिक सेंटर और ये पूरा मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे चिरल मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी मैंने चिरल मॉलिक्यूल के एग्जांपल दिए हैं 4 हेप्टेनॉल में, यहाँ पे एस्ट्रिक्स से देखो हाईलाइट किया है। तो ये हो गया आपका चिरल असिमेट्रिक सेंटर और ये हो गया आपका चिरल मॉलिक्यूल। इसमें भी एक असिमेट्रिक सेंटर है तो ये हो गया आपका चिरल मॉलिक्यूल। इसमें भी एक असिमेट्रिक सेंटर है तो ये भी हो गया आपका चिरल मॉलिक्यूल। ये हो गया आपके चिरल मॉलिक्यूल के एग्जांपल, 4 ऑक्टेनॉल, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 फोल्ड डायमिथिल हेक्सेन। ओके, अब देखो चिरैलिटी क्या होती है। चिरल ऑब्जेक्ट्स, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। ओके, अगर हम ये राइट हैंड को जैसे के तैसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। मतलब राइट हैंड के ऊपर अगर आपने सीधा लेफ्ट हैंड रखा तो अंगूठे के ऊपर अंगूठा आएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चिरल ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल। जैसे कि हमने ये लेफ्ट ईयर है राइट ईयर के ऊपर रखा जैसे के जैसा, तो ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये क्या होगा आपका
नॉन सुपर इम्पोजिबल चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये कार है, कार की देखो आप यहाँ पे ड्राइविंग सीट यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है, तो मैंने उठा के यहाँ पे ऐसे ये इमेज रखी, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। जो इमेजेस, जो मॉलिक्यूल्स नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं उनमें चिरल ऑब्जेक्ट्स या चिरल उनको चिरल बोलते हैं, या उनमें असिमेट्रिक सेंटर होता है। अब अचिरल ऑब्जेक्ट्स देखो आप, ये चेयर मैंने उठा के इस चेयर के ऊपर रखी, सब चीजें मैच होंगी, पूरी की पूरी इमेज मैच हो रही है, तो ये अचिरल ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली ये फोक मैंने इस फोक के ऊपर रखा, तो ये अचिरल हो गया, क्योंकि ये सुपर इम्पोजिबल है। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये सुपर इम्पोजिबल है। ये ग्लास ग्लास सेम ही है, ओके। चिरल ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स विथ लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड फॉर्म्स। चिरल ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड फॉर्म होता है। और चिरल ऑब्जेक्ट्स दे हैव सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ओके। ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, अ मिरर image that is not the same as the image itself. चिरल ऑब्जेक्ट्स हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अगर उसको नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो समझो कि वो चिरल है, समझा। और अगर उसको सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो वो अकायरल अचिरल है, ओके। हाँ, इसको कायरल भी बोलते हैं, अकायरल भी बोलते हैं, चिरल भी बोलते हैं, अचिरल भी बोलते हैं। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, वो उसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन की एग्जाम नहीं है आपकी, ठीक है। Next is chiral centers or chiral centers. A point in a molecule where four different groups or atoms are attached to carbon is called a chiral center. If two groups are the same, then there is only one way. A chiral molecule usually has at least one chiral center. मतलब क्या, अगर हमने पूरा मॉलिक्यूल देखा और उस मॉलिक्यूलों को हम अगर कायरल मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट एक कायरल सेंटर होना चाहिए, तो ही हम उसको कायरल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। या उसको स्टेरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कार्बन है, इसमें एक ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन है, तो ये हो गया स्टेरियोजेनिक सेंटर या कायरल सेंटर या असिमेट्रिक सेंटर। ये देखो स्टेरियोजेनिक सेंटर इस कंपाउंड में है 3 ब्रोमोहेक्सेन, तो ये पूरा बड़ा मॉलिक्यूल है, बट इसमें एक ऐसा सेंटर है जो कि स्टेरियोजेनिक है या कायरल सेंटर है। इसकी वजह से ये पूरा मॉलिक्यूल, हम इस पूरे मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ओके। सिमिलरली फाइब्रोमोडिकेन, यहाँ पे ये जो है ये कायरल है, ओ सॉरी, ये वाला जो है ये कायरल है, ओके। देखो इस पे क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक साइड पे ये वाली चेन है, ठीक है, ब्यूटिल, और एक साइड पे ये वाली चेन है पेंटाइल। तो इसके क्या हो गए, चारों इस पे डिफरेंट डिफरेंट हो गए। इसमें एक कायरल सेंटर होने की वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल को हम कायरल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। सिमिलरली इसका भी मैंने यहाँ पे दिया है, देखो एक हाइड्रोजन है इसमें, एक ब्रोमीन है इसमें, एक CH2CH3 है, और एक CH2CH2CH3 है, ये और ये, ठीक है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही सिर्फ ऐसा सेंटर होने की वजह से पूरे मॉलिक्यूल को हम कायरल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। Label the stereogenic centers in each molecule and decide if it is chiral or not. अब मुझे बताओ, ये 3 यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसका स्टेरियोजेनिक सेंटर है कि नहीं है, तो कितने हैं वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो A, B एंड C विल सी, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ए वाला ऑप्शन। तो इन ऑप्शन नंबर ए यू कैन सी, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। नाउ टेल मी इज यहाँ पे कोई कायरल कम ये है क्या सेंटर, यहाँ पे C है, ओके। ये कार्बन CH2CH3 और CH2CH3 और हाइड्रोजन और क्लोरीन से अटैच्ड है। इज इट कायरल और नो? No, sir. Two group we are same and सेम, two is यस different. यस करेक्ट। सो ये कायरल नहीं है। अब ये इस वाले पे आते हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है। इज इट कायरल? Yes, sir. करेक्ट, इट हैज अ कायरल सेंटर, ये यहाँ पे कायरल सेंटर है इसका, ओके।
ओके, ये वाला कायरल सेंटर हो सकता है क्या, ये वाला कार्बन? हम्म, यस सर। हो सकता है। नो। नो। ओके, एक ही है, बट द होल मॉलिक्यूल इज कायरल। ठीक है, अब इस वाले पे आ जाओ। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ये CH2, CH2, CH3, CH3। इसमें ये वाला कायरल है, कायरल सेंटर है ना? यस। और कोई है क्या इसमें कायरल सेंटर? कौन सा? CH3 उसमें Cl आगे। ये नहीं नहीं, उसमें Cl भी अटैच है। Cl कहाँ है, ये CH2 है। हाँ नहीं फिर। नहीं है ना, एक ही है ये। ओके, अब इस वाले कंपाउंड में देखो, इस वाले में दो हैं। ठीक है, प्रोपोक्सिफिन डायरवॉन एनाल्जेसिक है। ओके, इट हैज टू कायरल सेंटर्स, एक ये और एक ये। इफिड्रिन ब्रोंकोडायलेटर डिकंजेस्टेंट यूज करते हैं हम। ओके, इसमें ये दो हैं। नेक्स्ट इज फ्रुक्टोज अ सिंपल शुगर, इसमें क्या है, तीन कायरल सेंटर है। ओके, मतलब एक से ज्यादा भी कायरल सेंटर हो सकते हैं, बट मिनिमम एक होना चाहिए अगर हम उसको कायरल मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो, या चिरल मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। हाउ मेनी स्टेरियोजेनिक सेंटर्स डज ईच मॉलिक्यूल हैव? अब इन मॉलिक्यूल्स में कितने स्टेरियोजेनिक सेंटर हैं वो हमें बताना है। चलो, ए वाले में बताओ कितने हैं। टू। टू। एक मिनट, ए वाले में दो है। कौन से, लेट मी सी। ये वाला और ये वाला। ये ओके, यहाँ पे टू है। यहाँ पे बी वाले फोर। में फोर। ठीक है, ये एक हो गया। ओके, ये नहीं है, सॉरी। ये है क्या पहला वाला? पहला वाला है क्या, नहीं है। देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। ओके, तो पहला वाला तो नहीं आएगा। सेकंड ये वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे CH2 है तो दो हाइड्रोजन हो गया। ये वाला होएगा, यस ये वाला है। यस। हाँ, उसके बाद ये वाला बताओ। यस सर, वो भी होगा। यस, ये भी है। उसके बाद ये वाला। यस। यस, ये भी है। तो इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, तीन। अब थ्री। इसमें बताओ कितने कायरल सेंटर हैं। ये वाला। यस। यस। उसके बाद ये नहीं, ये नहीं, ये बताओ। यस सर। ओके, उसके बाद ये बताओ। यस। देखो, सोच समझ के आंसर दो। So three group are different NH. ओके, बरोबर, ये भी हो सकता है, यस। ठीक है, और इधर। हाँ ये भी है। ओके, ठीक है, तो इसमें कितने हो गए, चार हो गए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कायरल अकायरल के ही। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट जो है RNS DNL सिस्टम, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे स्टेरियोकेमिस्ट्री के। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अभिजीत, रोहन।